Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. सर अभी नहीं दिख रही है. Okay. So yesterday we did up to question number 10. Okay. So now let us continue the assignment number 6.1. Okay. Assignment 6.1. Now let us do question number 15. Okay. So question number 15 says a bit can slide on a smooth straight wire and a particle of mass m is attached to the bit by light string of length L. Okay. The particle is held in contact with the wire with the string taut and is then let fall. If the bit has mass 2m, then what? Then when the string makes an angle theta with the wire, then the bit would have slipped a distance. Okay. So initially, there's a bit and it is the string mass m. So this is mass m and this is mass 2m. So suppose this is object number 1 and this is object number 2. So initially, this is the position. Okay. Initial. Okay. And finally, what is given is that the angle it makes with theta. Finally, it is theta. Okay. Now tell me, so this is 1 and this is 2. Okay. Now tell me what is initial. So this is suppose x coordinate, x-axis in this direction. What is initial position of 1 in x direction with respect to 2? Tell me what is it? With respect to 2, what is initial position of 1? L, sir. L, right? This is initial. Okay. Finally, it comes here. So this is L. So now this is L cos theta. Now tell me what is final position of 1 with respect to 2 in x direction? L into 1 minus cos theta. नहीं, L cos theta है ना final position. L cos theta. Sorry. Change हो गया. L into cos theta. Okay. So 1 की 2 के रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन L है ना, और 1 की 2 के रेस्पेक्ट में इनिशियल फाइनल x कोऑर्डिनेट जो है वो L cos theta है. तो टेल मी व्हाट इज डेल्टा x12. Delta x12 is delta x12 final minus delta x12 initial. Okay. So delta x12 कितना हो जाएगा यहाँ से? Delta x12 is
L into cos 1 theta, minus cos theta minus 1. Okay. Now what is delta x12? Delta x12 is delta x1 minus delta x2. This is equal to L into cos theta minus 1. So from here we will get delta delta x1 is equal to delta x2 plus L into cos theta minus 1. So this is equation which relates delta x1 to delta x2. Now tell me, in x direction, is there any force on the system? जो भी लग रहा है नहीं फोर्स सर। वो y डायरेक्शन में ही है, तो x डायरेक्शन में no force on system. Okay, so then what condition we got? M1 delta x1 plus M2 delta x2 is equal to 0, right? Now tell me, what is M1? one M. M1 is M into delta x1. So what is delta x1 in terms of delta x2? Delta x2 plus x2 plus L x2 into cos theta minus 1. cos theta minus 1 plus. What is M2? M2 2M. 2M into delta x2 is equal to 0. x2 So from here, we'll get 3m delta x2 is equal to इधर जाएगा तो m हो जाएगा और l हो जाएगा और cos theta minus 1 will be 1 minus cos theta. Okay. So delta x2 will be l by 3 1 minus cos theta. तो delta x2 मतलब क्या है कि 2 जो है कितना शिफ्ट हो गया है, मतलब बिड कितना डिस्प्लेस हो गया. तो दिस इज शिफ्ट इन मास 2 जो कि एक बिड है. यही आंसर हो जाएगा आपका. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी. ओके, आंसर विल बी सी. Okay. Now let us do question number 21. तो यहाँ पे x डेल्टा x1 with respect to 2 1 minus cos theta नहीं होगा? डेल्टा x1 विद रिस्पेक्ट टू, देखिए उसका फाइनल पोजीशन क्या है? L cos थीटा है ना. इसका इधर कंपोनेंट तो फाइनल L cos थीटा है. आप देखिए डेल्टा x1 विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पहले आप इमेजिन कीजिए. 1 2 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा? इसके ऊपर बैठ के देखिए एक बार. तो इसके ऊपर बैठेंगे तो यहाँ पर बहुत दूरी पर है L डिस्टेंस पर, और यहाँ पर X डिस्टेंस में पास में आ गया ना. yes समझ गए? तो नेगेटिव में जाएगा ना सर? तो नेगेटिव में जाएगा तो cos थीटा माइनस 1 होना चाहिए ना. 1 माइनस cos थीटा क्यों होगा? आप देखिए ना, फाइनल माइनस इनिशियल. तो हाँ, फाइनल सर. में कितना है? L cos थीटा, और इनिशियल में तो L ही है क्योंकि थीटा 0 है. लिख लिया सबने? yes Okay. So now let us do question number 21.
Question number 21 says that two particles of masses m and 2m are moving in circles of radius r and 2r about a common center O. If the speed of each particle is v naught anti-clockwise, then okay. So there is a center about which this is mass m is moving, and there is another center of radius 2r in which mass 2m is moving. And this mass, each particle is moving with v naught. तो ये भी v naught से है, ये भी okay. तो अब बताइए, ये v naught से है, इसका मतलब क्या है कि दिस विल कंप्लीट द रिवोल्यूशन बिफोर दिस, क्योंकि सर r छोटा दोनों की है। स्पीड तो सेम है बट दोनों को डिस्टेंस अलग अलग कवर करना है, ठीक है, समझ गए बात। तो ये जब यहां पर आएगा, छोटा वाला यहां पर आ जाएगा, तब तक बड़ा वाला केवल यहीं तक पहुंच पाएगा। समझ गए बात, क्लियर बात। तो ये पॉइंट तो आप सब समझ गए कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उनका थीटा अलग अलग होगा, ये बात सब समझ गए Yes, sir. है ना। तो उनका थीटा अलग अलग होगा। तो बताइए अब, जब थीटा अलग अलग होगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 2mv0/r। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम तो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। देखिए यहां पर इसके ऊपर भी इधर फोर्स है और यहाँ पर इसके ऊपर भी इधर फोर्स है, तो यहाँ पर तो दोनों के ऊपर इधर है तो ठीक है, बट यहाँ पर इसके ऊपर इधर है और इसके ऊपर इधर है ना। फिर कुछ समय बाद दोनों ज्योमेट्रिकली अपोजिट हो जाएंगे, तो उसमें जो है इसमें इधर होगा और उसमें इधर होगा, है ना। तो फोर्स सिस्टम पे जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो दैट मींस फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम। सर आप फोर्स मतलब यहाँ फोर्स ऑन सेंटर ले रहे हैं क्या? क्या हुआ? सर आप मतलब यहाँ पे फोर्स मतलब फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ले रहे हैं क्या? हाँ, फोर्स मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है दोनों पार्टिकल्स। ओके ओके, तो फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो इसका मतलब है कि ए में तो 2mv0/r कांस्टेंट दिया है, तो बी ए भी गलत है, बी भी गलत है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास इसका सर्कल में मूव करेगा क्या? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है। अगर इसकी स्पीड v0 होती और इसकी 2v0 होती तो ये जितना एंगल चलता थीटा, तो ये भी थीटा चल लेता, तो ये सर्कल में मूव करता सेंटर ऑफ मास। बट अब जो है ये वाला जल्दी जल्दी मूव करेगा और ये लेट से, तो ये लेग करेगा, तो सेंटर ऑफ मास सर्कल पे मूव करेगा क्या? No, नहीं sir. करेगा, है ना। मान लेते हैं अगर इसकी स्पीड v0 होती और ये r है और इसकी स्पीड 2v0 होती, 2v0 होती है, 2r है, तो जितना एंगल ये चलता थीटा उतनी ही देर में ये भी चल लेता थीटा, है ना। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे होता, तो एट पर्टिकुलर टाइम पे दोनों जो है सेम एंगल चलते, तो जो सेंटर ऑफ मास ट्रेस करता कर्व को वो सर्कल होता। Yes, sir. बट यहाँ पर दोनों की स्पीड सेम है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों एंगल अलग अलग ट्रेस करेंगे, क्योंकि इसको कम डिस्टेंस कवर करनी है, इसको ज्यादा करनी है, तो सेंटर ऑफ मास सर्कल नहीं होगा, है ना। तो सी आपका गलत हो जाएगा और डी आपका सही हो जाएगा। सर लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव तो करेगा ना? हाँ, मूव करेगा, बिल्कुल सही बात, मूव तो करेगा। सर और मतलब अगर ऐसे सोचिए कि मतलब जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m1 हाँ। v1 + m2 v2 / m1 + m2, हाँ, सर वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना, क्योंकि थीटा कैप जो है वो चेंज नहीं, हो रहा है m1 v1 प्लस m2 v2, बाय m1 + m2। हाँ, तो वो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ सर, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते ना डायरेक्टली। नहीं नहीं, आप जो लगाएंगे तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी, डायरेक्टली तो लगा सकते हैं। सर क्योंकि थीटा कैप है ना, तो मुझे हाँ। मतलब यही डाउट था कि थीटा कैप है तो वो चेंज हो रहा है, तो नहीं नहीं, उसको- आपको अगर वो लगाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या रहेगा, है ना। तो सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे बात करते हैं, है ना। तो टाइम टी पे जो एंगल चलेगा ये सपोज अंदर वाला सर्कल 1 है और बाहर वाला सर्कल 2 है, तो टाइम टी पे जो चलेगा ये सपोज थीटा चलेगा, है ना, तो ये v0 है, ठीक है।
तो टाइम टी पे बताइए क्या होगा v। सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, माइनस वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन। माइनस ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो क्या होगा वी नॉट माइनस वी नॉट साइन थीटा प्लस वी नॉट कॉस थीटा। माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप, ये होगा, यस सर। है ना। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, टाइम के साथ में ओमेगा इंटू टी, है ना। सर और थीटा है ओमेगा, कितना है, ओमेगा है वी नॉट बाय आर, है ना। यस तो यहां पर आएगा माइनस वी नॉट साइन ओमेगा नॉट वी नॉट टी बाय आर आई कैप प्लस ये। और इसी तरीके से दूसरे में यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा थीटा बाय 2, यस क्योंकि जब ये एंगल थीटा चलेगा तो ये थीटा बाय 2 चलेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी आधी मतलब बराबर है बट रेडियस डबल यस। है ना। तो वहां पर उसका रिलेशन वो आएगा, तो आप दोनों की वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, सर मतलब कि मतलब दोनों की ऐसा नहीं, वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि वहां पे वी माइनस वी नॉट साइन थीटा प्लस वी नॉट कॉस थीटा आया तो हाँ, वी नॉट कॉमन निकाल दिया और माइनस साइन थीटा कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप को थीटा कैप लिख दिया। नहीं तो नहीं सर, ऐसा थीटा नहीं कैप कर दोनों का अलग अलग होगा ना, वही बोल रहा हूँ मैं। ओके सर, मतलब उसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा हाँ ऐसे। हाँ, थीटा कैप दोनों का अलग अलग होगा। ओके ओके सर। अगर यहीं पे दिया होता कि ये वी नॉट से चल रहा है और ये 2 वी नॉट से चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों सेम एंगल ट्रेस करते, तो सेम एंगल ट्रेस करते तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है सर्कल पे चलता। ओके सर। सर यस, सर यदि सेंटर ऑफ मास को सर ट्रेस करना हुआ तो कैसे करें? सेंटर ऑफ मास, सर यदि उसका पाथ निकालना हो कि किस पाथ में मूव कर रहा है तो कैसे निकालें? तो सेंटर ऑफ मास का पाथ निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं, एक्सटी निकाल सकते हैं। आपको निकालना पड़ेगा एक्सटी और वाईटी सेंटर ऑफ मास का। तो एक्सटी वाईटी कैसे निकालेंगे? वीडियो पॉज हो रहा है। क्या हुआ? नहीं सर ठीक है। सपोज टाइम टी पे थीटा है, ओके। तो टाइम टी पे थीटा चलाइए और ये मास m है, और मास 2m जो है वो टाइम टी पे कितना चलेगा, थीटा बाय 2। तो बताइए एक पर्टिकुलर थीटा पे इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, तो किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये 1 है और ये 2 है। तो x1 कितना है किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे, ये r है और ये 2r है। आर cos थीटा। r cos थीटा है, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे y1 कितना है, आर sin थीटा। r sin थीटा। हाँ। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे x2 कितना है, 2r cos थीटा पे आई 2। 2r cos थीटा बाय 2। थीटा और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे y2 कितना है, 2r sin थीटा थीटा बाय 2। और थीटा जो है आपका वो है ओमेगा टी, और ओमेगा जो है आपका वी नॉट बाय आर इंटू टी। तो एक्स सी ओ एम निकालना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। m1 x1 मतलब m इंटू आर कॉस थीटा प्लस 2m इंटू 2r cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 3m।
इसी तरीके से आपका एक्स वाई सी आ जाएगा, है ना। तो दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में आ जाएंगे, तो इस तरीके से आपका सेंटर ऑफ मास वेरी करेगा। समझ के बात? ओके, यस सर। सर यस। x1 डिस्टेंस कहाँ से है सेंटर ऑफ पॉइंट से? x1 डिस्टेंस मैंने ओरिजिन ये है ना। हाँ सर। हाँ, तो x1 क्या है, r cos थीटा। फाइनल पॉइंट कहाँ पे है उसका, जीरो से, ओरिजिन से? फाइनल पॉइंट ये है मैम, जो 1 वाला है, जो सर्कल ऑफ रेडियस r के अराउंड घूम रहा है ना। सर वो तो आ रही हुई तो r r डिस्टेंस। है और x कोऑर्डिनेट इधर है ना इसका, तो r cos थीटा। x एक्सिस इधर है मेरा और y एक्सिस इधर है, और कोई पॉइंट अगर r डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल पे, तो r cos थीटा होता है ना। ओके सर। सर आपने कहा था कि सेंटर ऑफ मास सर्कल में मूव कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही नहीं हुआ है। Option C सेंटर ऑफ मास सर्कल में मूव कर रहा है, सेंटर मास जो है। सर्कल ऑफ, मैंने कहा नहीं कर रहा है। अच्छा, नहीं कर रहा है इसमें, हाँ। इसके नहीं कर रहा। अगर वो दोनों में जो उसका ये है वेलोसिटी है, एंगल। दोनों अलग होता है, एंगल अलग होता हाँ, है। एंगल सेम होता तो फिर वो करता वो। अच्छा अच्छा, सेम होता तो yes। मतलब सर, एंगल सेम कब होता, जब इनर वाले की V0 होती है और आउटर वाले की 2V0 होती है, नॉट होता है, यस सर, ओके। है ना। सर हाँ, अगर एंगल सेम होता सर तो सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल वहीं पे रहता ना, अपना ओ पे ही रहता। नहीं नहीं, एंगल सेम होता, सेंटर ऑफ मास क्यों होता, यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे होता, तो यहाँ पे होता। दोनों पार्टिकल मूव करे तो सेंटर ऑफ मास भी सर्कल तो में मूव मूव करेगा। करते हैं। सर उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होता है दोनों पार्टिकल। हाँ हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होता, तो सही कहा आपने। सर सर्कल में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जैसे कि वो मतलब उसको ट्रेस मतलब लोकस ऑफ पॉइंट सर्कल नहीं आ रहा है ना। हाँ हाँ, इसका मतलब ये। लेकिन सर किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो तो मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों सर्कल के बीच में होगा, तो ऐसा इंट्यूशन से तो हम लोग बता सकते हैं। नहीं, दोनों सर्कल के बीच में थोड़ी होगा, अब यहाँ पर कहाँ पर होगा, कहीं और होगा, इधर होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल 2 यहाँ पे होगा और पार्टिकल 1 यहाँ पे होगा, तो एकदम अंदर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि 1 जो है आगे निकल जाएगा ना। हाँ यस सर। तो सेंटर ऑफ मास जो है वेरी करेगा इस तरीके, सर्कल में नहीं रहेगा। और कुछ कॉम्प्लेक्स आएगा ना उसका मोशन हाँ सेंटर ऑफ हाँ, मास। काफी मोशन इसका काफी कॉम्प्लेक्स आएगा। ओके, लिख लिया सबने ये? यस सर। यस सर। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24 एक बार करते हैं। Center of mass of a body. है ना, तो उसने ये पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज एट द जियोमेट्रिकल सेंटर। तो हमेशा जियोमेट्रिकल सेंटर पे होता है क्या सेंटर ऑफ मास? नो जियोमेट्रिकल सेंटर पे कब होता है, जब उसका body symmetric हो। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको डिस्क है एक, है ना, डिस्क है, और डिस्क के जो है इधर जो है हैवी है, मतलब इधर 2 सिग्मा है और इधर सिग्मा है, तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा क्या? नो सर। नहीं होगा ना, नो सर। क्योंकि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। अगर यूनिफॉर्म होता तो बिल्कुल सही होता, तो ए गलत हो गया, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा। ऑलवेज, ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, बताइए ऑलवेज इनसाइड होगा क्या? नो सर, है आउटसाइड ना, भी तो। आउटसाइड भी हो सकता है, जैसे हमने वो वायर वाला किया था, सपोज ये Yes. वायर है आपका, है ना, तो थोड़ा सा मान लो इस तरह से वायर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर होगा, है ना, यस सर। तो ये आउटसाइड द बॉडी है, तो ये भी गलत है। सी, तो सर इसमें तो हमने दो सो जो ये वाला बी वाला ऑप्शन था सर, इसमें हाँ। तो दो सिस्टम थे ना शायद, ये दो हाँ। बॉडीज।
हाँ। तो उसमें लिखा है सर मास ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी को अगर हम कंसिडर करते हैं हाँ, तो बॉडी आपकी रिजिड बॉडी इस तरीके से तो हो सकती है ना, वो डिफॉर्म्ड हाँ है ना। ओके रिजिड बट बॉडी आपकी उस सिंगल ही बॉडी तो हाँ, हो सकती है ऐसी। ओके सी भी गलत हो जाएगा सर, सी भी गलत हो जाएगा। सी ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने काफी देखा कि सर्कल का जो है सेंटर पे होता है अगर यूनिफॉर्म है ना, ऑप्शन आउटसाइड डी। में। तो डी क्या है कि कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, तो सही है। सही। अंदर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास और बाहर भी हो सकता है ना। सर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नहीं दिया है सर। आप इस 23 का एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 23 का आई एम डिस्कसिंग विद अनदर फैकल्टी मेंबर। इसका एग्जैक्ट क्या होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बार फिर मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। सर एक बार 22 भी बता दीजिए सर। 22 जो जो क्वार्टर डिस्क वाला है, यस सर। coordinate of the center of mass of the disk is, okay, तो 22 में क्या दिक्कत आ रही है? 22 में जो हमने फाई की वैल्यू ली थी ना, वो बस 0 से 2 पाई ली थी, उसको 0 से पाई/2 कर देना है। ट्वेंटी टू में क्या इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है क्या? एक्स वाई, अब क्वार्टर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर है। ठीक है, तो बताइए किसी पर्टिकुलर आर पे और किसी पर्टिकुलर थीटा पे मैं एक मास एलिमेंट लूंगा ना, तो उसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा सबसे पहले तो आर की डायरेक्शन में डी आर लेंथ होगी, और थीटा की डायरेक्शन में कितनी लेंथ होगी? आर डी थीटा। आर डी थीटा। तो डी ए आपका होगा डी आर इंटू आर डी थीटा, है ना। तो इसका डीएम कितना हो जाएगा? डीएम हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, है ना। ठीक है, अब बताइए मुझे यहां पर एक्स सी ओ एम जब लिखेंगे, एक्स सी ओ एम, तो एक्स सी ओ एम क्या होता है? एक्स डीएम बाय इंटीग्रल डीएम, ओके। तो इज इक्वल टू, बताइए पार्टिकल अगर आर थीटा पे है तो उसका एक्स क्या होगा? जो ये मास है डीएम, ये आर कॉमा थीटा पे, तो उसका एक्स क्या होगा? आर कॉस थीटा होगा। आर कॉस थीटा। और डीएम की वैल्यू है सिग्मा डीए, सिग्मा इंटू डीए कितना है? आर डी थीटा डिवाइडेड बाय डीएम कितना है? सिग्मा डीए, तो सिग्मा आर डी थीटा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, आपका एक्स सेंटर ऑफ मास बचेगा, इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल आर डी आर इंटीग्रल डी थीटा। तो आर कहां से कहां तक जाएगा? 0 से आर तक। और थीटा कहां से कहां तक जाएगा? 0 0 से पाई/2। बस हो गया, और क्या? एक्स सी एम, इसी तरीके से वाई सी एम आ जाएगा। तो वाई सी एम आएगा तो यहाँ बस क्या आएगा? आर कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आ जाएगा, है ना। हाँ सर हो गया। यार ये मतलब मैंने कराया नहीं था क्या इस तरह का क्लास में? कराए सर। तो एक मतलब आपस में आप लोग डिस्कस कर नहीं रहे हैं मतलब टेलीग्राम पे, क्योंकि ये अगर आप पूछते टेलीग्राम पे तो ये कोई भी आंसर दे देता टेलीग्राम पे। सर पूछा था मैंने। ओके। सर क्वेश्चन नंबर 19 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 19? पीछे की क्यों पूछ रहे हैं आप लोग यार? मैंने एक बार लिखवा दिया।
बाकी जो अभी लिस्ट है उसमें से कर रहे हैं हम, बाकी पीछे के क्वेश्चन है आप बाद में पूछ लीजिएगा मुझसे क्लास के बाद, ठीक है। तो लिस्ट मैंने लिखवाई थी 25। ओके, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ सर ऑब्जेक्ट 25 बुकलेट में है नहीं सर, क्वेश्चन बता दीजिएगा सर। हाँ, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट A of mass m is free to slide on inclined plane of triangular block of mass 2m. Okay. ये जो है 30 डिग्री पे यहां से रिलीज किया गया है ब्लॉक A, ठीक है, और दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो दिया हुआ है कि जब ब्लॉक यहां पर आ जाएगा नीचे, ब्लॉक एकदम नीचे आ जाएगा, तो दिया हुआ है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक B, ठीक है। तो सपोज ब्लॉक नीचे आ जाएगा तो इसकी स्पीड V हो जाएगी, है ना, इसकी स्पीड V हो जाएगी। और सपोज ब्लॉक नीचे आ जाएगा तो इसकी स्पीड VB हो जाएगी। और इनिशियली स्पीड क्या है, UA 0 है और UB भी 0 है, वहां से रिलीज किया गया। तो बताइए यहां पर सपोज दिस इज X डायरेक्शन, तो इन X डायरेक्शन सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स है क्या? नहीं है, जो भी लग रहा है ग्रेविटी या नॉर्मल जो भी लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है इस पूरे सिस्टम के ऊपर। एक्स में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब है कि एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, Yes, sir. है ना। तो एक्स सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब Vx सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट है और कितना है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे है, तो दोनों रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा, तो इनिशियली के बराबर होगा, तो ये 0 होगा, है ना। तो Vx सेंटर ऑफ मास 0 है। अब Vx सेंटर ऑफ मास क्या होता है, Vx सेंटर ऑफ मास क्या होता है, Ma इंटू VA प्लस MB इंटू VB डिवाइडेड बाय Ma प्लस MB इज इक्वल टू 0। और Ma कितना दिया हुआ है, Ma का M दिया हुआ है मास, इसका मास M दिया हुआ है, और B का दिया हुआ है 2B 2M, है ना। तो यहां से Ma आ जाएगा आपका M इंटू VA प्लस MB कितना है 2M इंटू VB इज इक्वल टू 0। M से M कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा VA इज इक्वल टू -2 VB। तो VA और VB की डायरेक्शन अलग अलग होगी, होनी भी चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहीं पे है, तो एक अगर आगे जाएगा तो दूसरा पीछे जाना चाहिए, है ना। अब बताइए यहां से यहां में हमारे पास VA और VB के बीच में एक और रिलेशन आ गया। एक और रिलेशन कहां से आ सकता है, ऊपर से नीचे स्लाइड कर रही है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा आपका, इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल ना। बताइए इनिशियल ब्लॉक A की एनर्जी कितनी है, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूं। mg into h। सबसे पहले A की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg MGL इंटू हाइट, तो डिस्टेंस अगर कितनी है, L है, और ये एंगल थीटा है, तो हाइट कितनी है, L साइन थीटा, L साइन 30 प्लस। अच्छा बताइए ब्लॉक बी की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल
भी वही की वही है और फाइनल भी वही की वही है, हाँ सर। Yes, तो ब्लॉक बी की लिखने की जरूरत नहीं है, no, है ना। ब्लॉक बी की इनिशियल भी मान लो सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, तो जितनी हाइट होगी फाइनली भी तो उतनी हाइट पे होगा वो, यस है ना। तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ बी इनिशियली, है ना, इज इक्वल टू फाइनली बताइए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा फाइनली। ए की तो जीरो रहेगी क्योंकि ए तो रेफरेंस पे आ चुका है, yes, sir. और बी की यू बी फाइनल, तो इनिशियल और बी की फाइनल सेम है। प्लस में अब काइनेटिक एनर्जी भी आएगा सिस्टम में, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम, हाफ इंटू 2m वी बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा एम जी एल साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो m से m कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो बचेगा आपका GL/2 इज इक्वल टू VA कितना है 2VB, ओके, VA कितना है 2VB, तो VA स्क्वायर इज 4VB स्क्वायर और 2 पहले से नीचे है, तो 2VB स्क्वायर प्लस यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा तो VB स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा VB इज इक्वल टू GL रूट GL बाय 2 into 3 6, VB रूट GL बाय 6 आ जाएगा, है ना। तो इसमें 6 कहां पे है, VA सर, VA की जगह वहाँ पे 2VB करेंगे तो 4VB स्क्वायर आ जाएगा ना। नहीं 4VB स्क्वायर आएगा बट नीचे 2 भी तो है ना, हाँ सर। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये वाला 3 दिया हुआ है बाय GL/3, 3 कैसे होगा, इनिशियली है, 1 मिनट, इनिशियली है L साइन थीटा है, बिल्कुल सही बात है, तो mg L साइन थीटा और साइन 30 इज 1/2, ओके, तो इनिशियल इट इज GL/2 और इज इक्वल टू फाइनली जो है हाफ m VA स्क्वायर और हाफ m VB स्क्वायर, तो हाफ इंटू m इंटू VA स्क्वायर, तो VA कितना है 2VB, तो आ जाएगा आपका 2VB स्क्वायर, तो 4VB स्क्वायर और 2 नीचे है तो 2VB स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू VB स्क्वायर, तो 3। 9 तो आने रहा है कहीं से कहीं तक नीचे यार, है ना, यस। सर मैंने इसको ब्लॉक ए को कंसीडर किया है, क्या हुआ, सर बस ब्लॉक ए को कंसीडर किया, उसी पे एनर्जी लगाया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करने से चला है, नहीं ब्लॉक ए का आपने क्या किया है, ब्लॉक ए को कंसीडर किया है। हाँ तो उसमें फिर क्या किया है, तो सीधे से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालें तो अंडर रूट जी, मतलब अंडर रूट जी निकालें। नहीं वेलोसिटी ऑफ ए कैसे निकाला फिर आपने, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अंडर रूट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज, हाँ नहीं, तो इसका ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने इसलिए पूछा था कि आंसर नहीं आ रहा है, किस लिए पूछा था, सर आंसर नहीं आ रहा था। आंसर यही आ रहा है क्या सबका, यस सर। ओके, सर और ब्लॉक ए का 4GL/6 आ रहा है, क्या हुआ, ब्लॉक ए का भी मैंने निकाला तो उसका 4GL/6 आ रहा है। हाँ ब्लॉक ए का तो इसका डबल हो जाएगा ना ब्लॉक बी वाले का, हाँ मतलब हाँ सर, मतलब हाँ, तो 4GL/6 आएगा, सही कहा, 2GL, यस सर। हाँ तो इसका आंसर ये कर लीजिएगा, आंसर ये है सही, है ना, ये कर लीजिएगा। इसमें आपने इसलिए पूछा था कि आंसर में दिक्कत थी क्या, यस सर, आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आंसर ये आएगा आपका VB इज इक्वल टू अंडर रूट GL/6,
ओके, सर एक माइक म्यूट कर दीजिए ना सर, वो शायद गलती से ऑन करके सर। क्या माइक का? ठीक है, सर, माइक किसी को- ऑन है सर, हाँ सर, म्यूट तो कर आप दीजिए। म्यूट कर दीजिए। सो गए माइक किसका म्यूट करूं मैं? सर पारसा परेशा, सो गए परेशा माइक आपका म्यूट कर लीजिए। नहीं सुनेंगे सर, वो शायद सो गई। सर सो गए वो। ओके, थैंक यू सर। तो लिख लिया आप लोगों ने ये? यस सर। यस यस ओके, MSQ 1। गाइस मुझे लगता है कि आप लोग टेलीग्राम पे डिस्कस नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम्स, क्योंकि काफी सिंपल सिंपल भी करा रहा हूँ मैं काफी बार। करते हैं सर। तो ये देखो सर ये हमारे हो लगभग जाएगा सर 25 ये। 25 और 5 30 क्वेश्चन करने में हमारे 2 दिन लग गए। मतलब 2 क्लासेस 1.5 घंटे की 30 क्वेश्चन करने में लग गए। ऐसे कितने क्वेश्चन है? सर एक बार आप पूछ लीजिए सर कि किनका डाउट है, वो है भी नहीं या हो गया है नहीं। आप मतलब पहले से टिक करके रखे हैं ना, उसके बाद तो फिर बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब MSQ का 1 देखते हैं। सर ये हो गया है शायद। तो MSQ का 1 आपका डाउट था क्या? नहीं सर, किसी का नहीं है, मतलब सचिन, किसका जिनका भी डाउट हो था ये? पूछ लीजिए सर। सर, मेरा नहीं हुआ सर, बता दीजिए। सृजन? हाँ सर, मतलब मेरा doubt हिंट दे दीजिए सर, अब पूरा मत अच्छा अच्छा, बताइए। ठीक। देखिए इसने ये बोला है कि स्मॉल बॉल इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। ठीक है। L से connected, both are initially on the ground. There is sufficient friction on the ground to prevent the block from the slipping. The ball is projected vertically upward with initial velocity u, where 2gl is less than u square is less than 3gl. The center of mass of the block plus ball system is C. सर इसमें C के बारे में पूछा आंसर है कि ए डी C। दिए है, लेकिन ए आ गया, मतलब ये तो आर जैसे ट्रैवल करेगा बॉल, तो सेंटर नहीं ऑफ नहीं, मास। देखिए अब मुझे बताइए कि सबसे पहले सपोज दिस इज मास 2 एंड दिस इज मास 1। ओके, तो उसने बोला है कि सबसे पहली बात तो ये तो चिंता मत करने करो कि स्लिप करेगा, मतलब यहाँ पर फिक्स है ये, है ना? यस सर। ये तो उसने बोल रखा है। तो ओनली मोशन होगा जो वो 1 का होगा, है ना? Yes, और 1 की जो स्पीड दी हुई है u, उसने दी रखी है स्पीड की रेंज अंडर रूट 3gl एंड रूट 2gl। ओके, तो अब बताइए मुझे, सबसे पहला काम तो ये है कि अगर 1 जो है इस तरीके से जाएगा तो ये कंप्लीट सर्कल अगर 1 पूरा कर ले तो सेंटर ऑफ मास सर्कल पे मूव करेगा। हाँ यस सर। क्योंकि 2 तो वही का वही है, 1 सर्कल पे जा रहा है तो यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर, है ना? तो 1 अगर सर्कल मोशन करता है तो सेंटर ऑफ मास भी सर्कल पे चलेगा। क्लियर? यस सर। है ना? अब हमें 1 का चेक करना है। तो आपको एक क्वेश्चन याद होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सर्कुलर मोशन कर रहा है वर्टिकल। तो बताइए उसकी यहाँ पर वी मीन कितना होना चाहिए ताकि वो सर्कुलर मोशन कर रूट पाए? जीएल सर। कितना होना चाहिए? रूट रूट जी। जीएल रूट जीएल होना चाहिए। और नीचे आ रहा था रूट 5gl, मिडिल पे सर रूट 2gl ना? करके आता है। तो v 3gl। min मतलब कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द टॉप पॉइंट सो दैट द पार्टिकल विल डू द सर्कुलर मोशन विदाउट स्ट्रिंग बीइंग स्लैक्ड, मतलब सर, स्ट्रिंग ये टाइट उस है। केस में था जब मतलब पूरा सस्पेंडेड था बॉडी, मतलब टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे टेंशन लोएस्ट मतलब इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम नहीं है ना। नहीं जब नहीं, root इनिशियल gel पॉइंट में मैक्सिमम की जरूरत नहीं है। ये वी मिन तो हम कहीं भी निकाल सकते हैं, नीचे से फेंका कहीं से भी। वी मिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टेंशन को जीरो कर देते हैं,
ओके, हाँ हाँ है ना। कहीं से भी फेंका हो, वी मीन तो यही है, ऊपर वाले हाँ, हाँ। पॉइंट पे अगर इतनी वेलोसिटी मिल गई मतलब सर्कल पूरा करने की उसमें कैपेसिटी है ना। यस सर। तो बताइए वी मीन यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, यू मीन कितना रिक्वायर्ड है, √3 GL से। यू मीन कितना रिक्वायर्ड है बताइए। तो आपका आएगा यू मीन हाफ एम यू मीन स्क्वायर प्लस, इसको सपोज रेफरेंस ले लेता हूं मैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं, प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा, हाफ एम वी मीन स्क्वायर प्लस mgl, है ना। तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा यू मीन स्क्वायर इज वी मीन स्क्वायर कितना है gl प्लस यहां से 2 आ जाएगा तो 2gl। तो यू मीन जो रिक्वायर्ड है वो है √3gl। मतलब कि यहां से 3gl से फेंकेंगे तब जाकर कहीं पे वो यहां पर टेंशन 0 होगा और सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा, जस्ट कंप्लीट करेगा, है ना। बट हमें यहां पर जो वेलोसिटी दी है उसकी रेंज कितनी है u की, लेस देन 3gl है, यस सर। है ना। Yes, sir. लेस देन 3gl है मतलब अब क्या होगा कि पार्टिकल यहां से चला, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन मान लो ये है, तो पार्टिकल यहां से चला और यहां से जाके किसी पहले ही पॉइंट पे उसका टेंशन 0 हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। समझ गए। यस सर। तो किसी पहले ही पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगा, तो टेंशन 0 हो जाएगा तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, तो यहां से फिर अब स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं है, तो यहां से फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करने लग जाएगा, है ना। फिर सिमेट्री है तो इधर आएगा और फिर यहां से वापस से सर्कल आ जाएगा। सर ये बात समझ में नहीं आई सर, स्ट्रिंग स्लैक तो पिछला केस में भी होता था जब पूरा सर्किट खत्म कर रहा था, नहीं मतलब स्ट्रिंग, टेंशन। आप क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग स्लैक क्यों करेगी। नहीं सर, आप बोले ना कि स्ट्रिंग स्लैक करेगा तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसा पैराबोला हाँ पाथ। हाँ, तो सर स्ट्रिंग स्लैक देखिए, स्ट्रिंग स्लैक करेगा मतलब सपोज इस पॉइंट पे स्ट्रिंग ने स्लैक किया, सपोज यहां तक तो सर्कुलर मोशन चला, यहां तक तो आपका सर्कुलर मोशन चला, है ना, और इसके बाद में स्ट्रिंग स्लैक कर गया, तो स्ट्रिंग स्लैक कर गया मतलब अब स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है पार्टिकल, कुल मिला के बात ये है। यस तो मतलब पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है और वो ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है, यस तो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ है और ग्रेविटी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे कुछ है, तो ग्रेविटी के अंदर मूव करेगा तो इस तरीके से चलेगा फिर ये प्रोजेक्टाइल, यस सर, फिर पैराबोला हो जाएगा। हाँ पैराबोला हो जाएगा ये। तो जहां सर तक स्ट्रिंग टाइट है वहां तक देखिए, अगर स्ट्रिंग नहीं होती तो भी पैराबोला ही चलता वो, बट स्ट्रिंग उसको सर्कुलर में करने के लिए कंस्ट्रेंट कर रही है ना। तो स्ट्रिंग कर रही है कंस्ट्रेंट किससे, टेंशन फोर्स से, बट टेंशन 0 हो गया तो कुल मिला के पार्टिकल फ्री पार्टिकल इन ग्रेविटी हो गया। सर लेकिन मेरा वही डाउट है सर कि आपने पहले फुल सर्कुलर मोशन आपने जब कंसिडर किया था नहीं तब भी आपने t इक्वल टू 0 में हाईएस्ट पॉइंट पे लिया था, तब हाँ आपने ये नहीं बोला था कि पैराबोला में जाएगा, तब आपने सर्कुलर ही कंसिडर किया था। नहीं, मैंने ये बोला था तब कि हाईएस्ट पॉइंट पे t0 होगा तो यहाँ पर जस्ट 0 होगा, उसके बाद में वापस नॉन 0 होने लग जाएगा ना। सर तो यहाँ पे भी नॉन जीरो हो सकता है, मतलब वहां पे t इक्वल टू 0 हो गया फिर बाद में उसके बाद वापस नहीं नॉन जीरो उसके होने बाद में लगा। नॉन 0 नहीं होगा ना। सर वहां पे क्यों नहीं, वहां पे क्यों हो रहा है यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। क्या हुआ, सर आप मतलब फुल सर्कुलर मोशन में t नॉन जीरो नहीं होगा, मतलब पहले t इक्वल हाँ टू 0 हो जाएगा फिर वापस t नॉन जीरो हो जाएगा, हाँ लेकिन हाँ इस केस में हाँ t इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिर पैराबोला बन जाएगा, क्यों ऐसा, हाँ, मतलब t इक्वल वापस नॉन जीरो क्यों नहीं होगा। नहीं पैराबोला बन जाएगा, फिर देखिए इस पॉइंट पे वापस से आएगा, सिमेट्रिक है ना मोशन। यहां से मान लो पैराबोला, यहां से सर्कल बनना खत्म हुआ और पैराबोला बनना शुरू हुआ, तो यहां से पैराबोला बना, तो यहां पर जितनी वेलोसिटी है उतनी की उतनी यहाँ नीचे आ जाएगी, अच्छा सर मतलब है ना। वहां से वापस सर्कुलर बन तो जाएगा। यहां से वापस से सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा, ओके ओके यस समझ गए बात क्या होगा, यस है ना। तो ये किस केस के लिए, u इज लेस देन 3gl के लिए, मतलब कि उसके पास सर्कुलर मोशन करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर 3gl से ज्यादा दिया होता तो सर्कुलर है, तो यहाँ पे पार्टिकल का मोशन क्या होगा, यहां तक तो सर्कुलर होगा और यहां से यहां तक जो है पैराबोला होगा,
फिर यहां से यहां तक वापस से सर्कुलर होगा। हाँ, समझ गए बात आप? यस नहीं है ना? सर, कहाँ? तो इसका आंसर है सी विल मूव अलोंग द सर्कल। तो ये आंसर तो नहीं है, सर्कल पे करेगा इनिशियली, बाद में पैराबोला पे करेगा, फिर सर्कल। तो सी विल मूव अलोंग द पैराबोला, ये भी गलत है। सी विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इनिशियली बढ़ेगा, है ना? समझ गए बात? यहां से यहां तक बढ़ेगी सर हॉरिजॉन्टल बड़ा वेलोसिटी। तभी तो राइट साइड जा रहा है ना। हाँ, जब भी तो राइट साइड जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर जब पैराबोलिक मोशन करेगा तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट हो जाएगी फिर। कांस्टेंट हो जाती है। तो पहले बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट रहेगी, फिर यहां से क्या होगा, घटेगी। हाँ सर। हाँ, फिर घटेगी। तो ये इस तरीके से होगा सर वहाँ horizontal पे भी सर वो मैग्नीट्यूड वाइज घटेगा ना, डायरेक्शन वाइज तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज घटेगा। हाँ, सही कहा आपने, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड की घटेगा, बात कर रहे हैं। है ना? तो पहले बढ़ेगा आपका, फिर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पैराबोला में एक्स डायरेक्शन में स्पीड जो है कांस्टेंट होती है, और उसके बाद में घटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना? तो डी भी तो नहीं हो पाएगा ना, वो पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर सैचुरेट हो रहा है, फिर जाके डिक्रीज कर रहा है। हाँ, मतलब कि इसमें अगर आप लिख लीजिए कि फर्स्ट इट विल इंक्रीज देन रिमेन्स कांस्टेंट देन डिक्रीज, तो सही होगा डी। क्वेश्चन में ना सर अगर 3GL पे क्लोज इंटरवल लगा देना तो ऑप्शन सही है फिर। नहीं, क्लोज इंटरवल लगा दे तो भी आप बोल नहीं सकते ना कि 3GL से ही मूव कर रहा है। इसका मतलब तो ये भी होगा ना कि मतलब कुछ भी हो सकता है, √2.5 GL भी हो सकता है। सही केस अगर अज्यूम करें, मतलब ऑप्शंस तो उससे नहीं होगा। नहीं नहीं, मतलब वो सही है एग्जैक्टली सर। अगर पूछे तो इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं है। सही नहीं है सर, हाँ, वैसे तो सही नहीं है ना? है। एग्जैक्टली आप ऑप्शन को छोड़िए, आपको एनालिसिस समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर, ये समझ में आया था। हाँ हाँ। तो और स्पीड किस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। तो आप इसका आप इसमें क्वेश्चन में ये एनालिसिस समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए कि u स्क्वायर इज ग्रेटर देन √3GL, ये कर लीजिए आप, तो आपका ए और डी सही हो जाएगा, है ना? आप क्वेश्चन में ये लिख लीजिए u स्क्वायर इज ग्रेटर देन √3GL। तो उसमें क्या है, आपका सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि पूरा सर्कल बना लेगा ये। और डी ऑप्शन से हो जाएगा कि पहले डिक्रीज करेगा, फिर पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो उस केस में इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करेगा? किस केस में? मतलब वेलोसिटी। u स्क्वायर ग्रेटर देन 3GL में। हाँ, तो u स्क्वायर ग्रेटर देन 3GL में यही होगा ना कि पहले यहाँ Constant। पे पहले पूरा का पूरा इधर ही है, हाँ हाँ हाँ, यस सर, फिर उधर पार्टिकल नीचे इधर होगा। है, तो पार्टिकल के ऊपर टेंशन हमेशा इधर लग रहा है ना? यस सर। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमेशा इधर लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमेशा यस इधर लग रहा है, तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा हमेशा, है ना? अब जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद में टेंशन इधर लगने लग गया, तो टेंशन का इधर का कंपोनेंट इधर है, तो वो वेलोसिटी को घटाएगा। यस सर, यस। ये इसमें सर पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज फिर नहीं, पहले देखिए, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कांस्टेंट रहेगा ना कुछ देर तक, उसके बाद फिर डिक्रीज। इस केस में बात कर रहा हूँ मैं u स्क्वायर ग्रेटर देन 3GL। अगर इसमें तो पूरा अगर पूरा का पूरा करेगा। सर्कल है, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। अगर सर्कल है और फिर पैराबोला है फिर सर्कल है, तो इंक्रीज करेगा, फिर पैराबोला में तो कांस्टेंट रहता है, हमने देखा था ux, यस सर। और फिर डिक्रीज करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे इस रीजन में टेंशन जो है वेलोसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि टेंशन इधर है, तो टेंशन का x कंपोनेंट इधर है, तो वो vx को बढ़ाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है ना? तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक इधर लगेगा, तो इधर लगेगा, तो वो वेलोसिटी को कम करेगा। सर इधर और एक डाउट है सर। यस सर मतलब इधर अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, हाँ, तो सर इसका एक मैक्सिमम हाइट होगा जहां तक ये जा सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो मैक्सिमम एक हाइट होगा ना जहाँ पे ये जा सकता है, फिर जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट एक रहता है ना। यस 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 यस, यू आर राइट। सर तो मतलब उसको ऐसे कैसे, मतलब उस चीज को इधर से कैसे समझ सकते हैं सर? मैक्सिमम हाइट कैसे समझ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ सर। अच्छा,
तो देखिए यहां से u इज लेस देन 3gl है, यस सर। तो यहां से आप देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट जो है वो लेस देन l होगा। अच्छा, मतलब जो पैराबोला का हाइट है वो लेस देन ये होगा। हाँ लेस देन वो होगा। ओके ओके सर। ठीक है, सर इसमें जो हमारा इनिशियल स्पीड है वो √3gl से अगर ज्यादा होगी तो सर सर्कल में रहेगा। हाँ ज्यादा है तो सर्कल रहेगा, तो आप क्वेश्चन में इसको ग्रेटर देन कर लीजिए। हम्म। मैंने लेस देन के लिए एनालिसिस आपको बता दिया क्या हुआ। ओके सर इस क्वेश्चन में जो 2gl से सर ग्रेटर देन है उसका मतलब सर 2gl से ग्रेटर देन है तो मतलब कुछ दिया हुआ है वहां पे 2gl से ग्रेटर देन है। सर ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब है हमारा एनएटी का। एनएटी का क्वेश्चन नंबर एक बार देखते हैं। 3 जो है हम रिजिड बॉडी में देखेंगे, रिजिड बॉडी का प्रॉब्लम है। 4 देखते हैं एक बार। तो 4 दिया हुआ है a cylindrical vessel of radius 1 meter and height 2 meter is half filled with water। हाँ तो 4 किसका डाउट है? 4 क्वेश्चन नंबर 4 अजीत आपका है? ओके, तो क्या है इसमें 4 में आए तो मुझे सिंपल लग रहा है। a cylindrical vessel of radius 1 meter and height 2 meter। तो जो रेडियस है आपका वन मीटर है और हाइट जो है आपका 2 मीटर। is filled with water। The cylinder has mass 10 kg। तो सिलेंडर जो है इसके अंदर दो है, एक तो वाटर है और एक सिलेंडर है ना। डेंसिटी दिया है और मास दिया हाँ, तो सिलेंडर का जो मास है, सिलेंडर का उसका मास दिया हुआ है, मतलब सिलेंडर का रो दिया हुआ है। रो सिलेंडर दिया हुआ है, रो नहीं सिग्मा दिया हुआ है ना। सिग्मा दिया है सर, पर मीटर स्क्वायर है। सरफेस दिया हुआ है, तो सिग्मा सिलेंडर दिया हुआ है 10 kg पर मीटर स्क्वायर, और रो वाटर है बीच में। तो वाटर जो होगा उसका शेप भी सिलेंड्रिकली होगा, यस है ना। Yes, sir. वाटर बॉडी है जो, वो भी तो सिलेंडर ही है। तो वाटर बॉडी का Yes, शेप जो है sir. सिलेंड्रिकली होगा, और उसका रो डब्ल्यू दिया हुआ है। इसका डेंसिटी, मास डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब उसने बोला कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंडर एंड वाटर फ्रॉम द बेस इज। ओके, हाइट फ्रॉम द बेस। तो देखिए यहां पर दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, है ना।
यस सर, एक ऑब्जेक्ट तो है सिलेंडर, दूसरा वाटर। तो सिलेंडर का बताइए, जो सिलेंडर है ओनली होलो सिलेंडर होगा वो, है ना? बेस वाला होगा सर, उसमें क्या हुआ? बेस होगा ना सर सिलेंडर का, हाँ सिलेंडर का बेस होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट का टॉप वाला पार्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन है मुझे, इसमें सिलेंडर कौन सा वाला सिलेंडर दिया हुआ, पूरा पैक वाला सिलेंडर दिया हुआ है नहीं जो सर, मतलब वेसल डब्बा है, टाइप है या ऊपर से खुला हुआ है? हॉलो है। ऊपर खुला है सर, बस नीचे बेस अच्छा, है वेसल। मतलब नीचे बेस है, ऊपर खुला से हुआ खुला हुआ है। ग्लास सर, जैसा है सर, हाँ। ओके ओके, अच्छा तभी इसमें water हाँ, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग, अदरवाइज तो ये फिर सेंटर ही हो जाता उसका, यस है ना? सर। तो अजीत आपको ये डाउट तो नहीं है? देखिए सिलेंडर जो है ना, वो सिलेंडर का टंकी जो दी हुई है वो एज अ टैंक इसमें दिया हुआ है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, बस ये प्रॉब्लम था कि 0.523 करके आ रहा है, वो इसमें दिया हुआ है 0.51। सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, मतलब कि ये है और नीचे से बेस है, ऊपर से खुला हुआ है ना? डिसाइड कैसे करेंगे? हाँ वो डिसाइड मुझे भी समझ में नहीं आया यार, इन्होंने डिसाइड कर लिया पता नहीं कैसे, मतलब वेसल दिया हुआ है ना, सिलेंड्रिकल वेसल, तो वेसल तो ऐसा ही होता है, ग्लास टाइप, ग्लास जैसे दिया हुआ है। देखिए अगर वो क्लोज्ड होता ना तो वो बोलता कि क्लोज्ड है, वेसल दिया हुआ है तो वेसल तो हमेशा ओपन ही होता है। यस सर, वेसल एक मतलब क्या? हिस्सा उसका वेसल तो मतलब क्या? पानी भर रहे हैं बर्तन, ना जैसे उसमें सर। ग्लास हो गया या फिर कोई और हो गया, है ना? मग। है ना? तो वेसल दिया हुआ है, इसलिए इसलिए इसमें थोड़ा वो है, हमें हिंट मिलता है। तो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? आंसर एग्जैक्ट मतलब मैच नहीं करता है। अच्छा आंसर नहीं हो रहा है, सबका मैच नहीं हो रहा है क्या? हाँ सर, मतलब कि Yes, sir. 0.514 है और 0.523 आ रहा है आंसर। अच्छा अच्छा, तो एक बार ठीक है, मैं आंसर चेक कर लूंगा एक बार, आंसर आई चेक। आपका कितना आ रहा है? 523? हाँ सर, मतलब मेरा 0.523 मीटर आ रहा है ओके, फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर। या ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। नहीं 0.523 फ्रॉम द बेस क्यों होगा यार, नीचे होना चाहिए ना वो तो, क्योंकि देखिए ज्यादा मास तो नीचे है ना। तो हाइट 2 मीटर दे के रखा है ना सर। देखिए हाफ फील्ड लिखा है ना, ओ अच्छा अच्छा हाफ फील्ड है सर, और हाइट 2 मीटर दे के रखा है, तो सर 1 अच्छा, मीटर से कम ही आएगा देखिए ना। इसमें हाफ फील्ड है तो इसीलिए अब ओके, तो हाफ फील्ड है तो वाटर जो है ये हाइट h है, तो वाटर जो है वो हाफ फील्ड है। हाँ, तो वाटर का जो है हाफ फील्ड है, h/2। ओके ठीक है, तो मैं आंसर एक बार देख लूंगा, है ना? तो ये हाँ दो सर, सिस्टम है हमारे पास, एक ये हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर जो है h का है, सॉलिड सिलेंडर h/2 का है ना? ओके सिलेंडर का सर सेंटर ऑफ मास डिसाइड हो जाएगा तो ये जाएगा। हाँ हाँ, देखिए आपने सचिन आपने क्या ये वाला किया था, इसको इसको फुल मान के किया था क्या एक बार? सर उससे भी सर ऑलमोस्ट मतलब सेम आ रहा है, और इनफैक्ट ज्यादा आएगा ना सर, अगर एरिया हम ज्यादा कंसिडर करेंगे तो। एरिया ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ज्यादा आएगा वो 523 से तो। हाँ। ठीक है ठीक है, मैं आंसर एक बार चेक कर लूंगा, है ना? हाँ सर, चेक कर बट लीजिएगा। सिस्टम में यही है कि हॉलो सिलेंडर है प्लस सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर h का है और सॉलिड h/2 का है ना? आंसर आई चेक, बाकी तो सिंपल है फिर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर NAT का 5, तो 5 किसका डाउट है? 5 में क्या दिक्कत है? यस सर, सर आंसर गलत आ रहा है। 5 में भी आंसर की दिक्कत है? यस सर, उसमें आंसर गलत दिया हुआ हाँ सर, क्या आ रहा है उसमें सबका आंसर? 5 का 10 आंसर क्या आ रहा है? समथिंग, है। 10 आ रहा है लेकिन 10.05 आ रहा है, आंसर में 9 दिया है। जस्ट 1 मिनट, उसका 523 आ मतलब रहा है मेरा और गलत इसका ही आ रहा है। फिफ्थ का आंसर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, 10.05 10 कुछ आ सेंटीमीटर रहा आ रहा था। है। 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके हम्म, ठीक है, फिर तो 5 9 का भी दिखा मैं रखा आंसर है। चेक कर लूंगा एक बार।
2-3 बार करा सर, मेरे को लगा कोऑर्डिनेट्स लेने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए, लेकिन सर सभी सब का कह 10 रहे आ हैं रहा है तो तो आंसर 10 ही होगा। हाँ हाँ वही। नहीं नहीं नहीं, 5 का मैं एक बार चेक कर लूंगा आंसर। सर आप एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए ना उसका, हम लोग मैच कर लेंगे जो बस वही तो करना है, कोऑर्डिनेट से लेके M1 R1 को देना है। हाँ हाँ, वही वही करना है। इसमें क्या है कि वो कैविटी बनाया ना उसने। हाँ सर, हाँ किसी तो वही एज से करना है। बना। हाँ हाँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो सर अब हमारे पास 20 मिनट बाकी है, तो असाइनमेंट 7.1 स्टार्ट कर दें क्या? हाँ सर, डाउट है सर उसमें। ठीक है, हाँ 7.1 के मेरे लिखे हुए हैं कुछ, आपने बोला था। अच्छा, आपने 8 कर लिया कि नहीं अभी तक? नहीं सर, पूरा यस नहीं सर। करा है। अच्छा, तो आप 8 और 8.2 भी कर लेना, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं 7 के कुछ प्रॉब्लम। क्या हुआ? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है फ्रेंड ऑफ। ठीक है, तो असाइनमेंट 7 का क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? कंजर्वेशन लॉस है। सर इसका 7 नंबर डाउट में कंसिडर है क्या? क्या 7 में? 7 का 7 नंबर डाउट में कंसिडर है क्या इसमें? नहीं तो सर एक बार वो कर लीजिएगा। हाँ हाँ कर लूंगा मैं, ठीक है। उससे पहले एक बार थर्ड और फोर्थ भी है तो वो देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 का मैंने कुछ हिंट दिया था क्लास में। हाँ सर, वो जिसपे Yes, sir. कोलाइड इक्वेशन नहीं और उसके अलावा मोमेंटम कंजर्वेशन देंगे। हाँ हाँ, ओके। तो 3 किसका डाउट है? 3 में क्या कैलकुलेशन नहीं हो रहा है क्या? थ्री किसका डाउट है? 3 में मैंने आपको हिंट दिया था कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना? तो ये है आपका प्लेन P, दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन नंबर 2। और सपोज दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। और इधर जो है पोटेंशियल U1 है और इधर है पोटेंशियल U2, है ना? तो पूरे के पूरे रीजन में U1 है और इधर U2 है। और इधर जो है पार्टिकल आ रहा है वेलोसिटी v1 से, एंगल है θ1, और इधर जा रहा है वेलोसिटी v2 से और एंगल है θ2। ओके, तो हमें निकालना है sin θ1 बाय sin θ2। ये निकालना है हमें। ओके, तो यहां पर देखिए जो पोटेंशियल है U वो y इंडिपेंडेंट है कांस्टेंट है सर। हाँ है ना? क्योंकि किसी भी पॉइंट x पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर भी U1 है, यहाँ पर भी U1 है, यहाँ पर भी U1 है, यहाँ पर U1, यहाँ पर U1, यहाँ पर U2, यहाँ पर U2, यहाँ पर U2। तो किसी पर्टिकुलर x पे देखें
तो y को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब पोटेंशियल y इंडिपेंडेंट है, और Fy क्या होगा, माइनस डेल यू बाय डेल वाई। तो u अगर y इंडिपेंडेंट है तो डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, 0 जीरो हो जाएगा। तो Fy 0 है, Fy 0 है, इसका मतलब क्या है कि Ay 0 है, Ay 0 है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इन रीजन 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इन रीजन 2। बताइए व्हाट इज पोटेंशियल वेलोसिटी, क्या हुआ? तो रीजन 1 रीजन 2 में लिखा है सर, आप y डायरेक्शन में क्यों उसको कांस्टेंट कर रहे हैं? मतलब y है x डिपेंडेंट क्यों नहीं बोल सकते सर उसको, x इंडिपेंडेंट? नहीं, x डिपेंडेंट तो होगा ना वेलोसिटी, नहीं इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बोल सकते सर उसको? ऐसा क्या हो रहा है आप, मतलब हमें क्या दिख क्योंकि रहा यहाँ है पर इसमें? u1 है और यहाँ पर u2 है, तो यहाँ पर चेंज होगा ना पोटेंशियल। तो सर y में भी तो हो सकता, y में भी तो हो सकता है y ना में फिर। कहाँ होगा, y में चेंज थोड़ी हो रहा है सडनली। मतलब देखिए प्लेन पी है सर वो, थोड़ा सा देखिए डायग्राम u, को आप बता दें। u क्या है, u एज अ फंक्शन ऑफ x ये है u1 और u2, ये है ना। ऐसा लिखा नहीं है ना सर कहीं पे कि हम कैसे समझ रहे हैं कि उसका फंक्शन ऑफ x ही है, फंक्शन ऑफ y है? नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, उसने दिया हुआ है कि रीजन 1 में u1 है और रीजन 2 में u2 दिया हुआ है। तो इस हाँ पूरे सर। रीजन में u1 है और इस पूरे रीजन में u2 है। बस सर हाँ उस सर। पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। उस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, उस पार्टिकल पे y डायरेक्शन में फोर्स 0 है। सर ये x और y वाला नहीं समझ में, सर मैंने इसको बस प्लेन से किया कि वो प्लेन के अलोंग, प्लेन के पैरेलल प्लेन पे वो उसका फोर्स 0 हो हाँ, तो जाएगा। आपने वो कैसे किया कि प्लेन के पैरेलल कांस्टेंट होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर कांस्टेंट, ये कैसे आपको आइडिया है? सर वो मैंने मतलब किया, वो प्लेन देख के मैंने कर लिया कि उससे कोलिजन टाइप का मैंने सोचा नहीं सर कि नहीं, वो तो जाके मतलब उससे नहीं, कर वो रहा है। जो उसके पीछे आपने लगाया कि प्लेन के पैरेलल में कांस्टेंट होगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? उसके पीछे का सर ये अंडरलाइंग सोचा, रीजन यही है हाँ हाँ। कि y डायरेक्शन में फोर्स 0 है। तो सर वही समझ में नहीं आता कि यही लेने पे क्यों ऐसा कुछ स्पेशली मेंशन तो नहीं करके रखा है कि वो y के अलोंग 0 है या x के अलोंग? नहीं, क्योंकि आपको दिया हुआ है ना पोटेंशियल, इस पूरे रीजन में देखिए दिया हुआ है आपको u1 है। हाँ सर। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए हम, देखिए किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन u है ना, वो फंक्शन u y पे डिपेंडेंट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स पे देखो और u y को चेंज करते जाओ तो देखो कि u चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे u1 है, यहाँ पर भी u1 है, यहाँ पर भी u1 है, यहाँ पर भी u1 है। तो किसी एक पर्टिकुलर एक्स पे y चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज होगा क्या? नहीं अभी नहीं हो रहा है सर, इस लेकिन रीजन में तो नहीं होगा सर। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर y पे x को चेंज करते हैं, तो सपोज y इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पर u1 है, 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 लेकिन यहाँ पर u2 हो गया, अच्छा हाँ है ना। सर। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर y पे x को चेंज करते देंगे तो फंक्शन चेंज होगा, तो मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ सर है समझ ना। रहे हैं। लेकिन सर फर्स्ट रीजन में तो सर चेंज तो नहीं हो रहा है। हाँ, जिस चेंज रीजन में नहीं ये हो रहा है, सर बट चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब फंक्शन यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जंप कर रहा है हाँ ये, सर। है ना। तो डिपेंड तो हो गया ना x पे, है ना? और तो v/y1 जो आपने पैरेलल वाला हो लगाया है, उसके पीछे का अंडरलाइंग रीजन यही है, रीजन कि y डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स 0 है। ओके सर तो समझ बताइए v/y1 कितना है? साइन v/y1 ऑफ थीटा, मतलब साइन v1 थीटा का वन। y डायरेक्शन में, तो v1 का इधर कंपोनेंट क्या है, v1 sin θ1, B1 से थी। vy का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, v2 sin θ2। sin थीटा ठीक है, तो यहां से आपका आएगा sin θ1 बाय sin θ2 इज v2 बाय v1, और हमें आंसर किस टर्म में दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है t1 u1 और u2 के टर्म्स में, t1 u1 और u2 के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है। ठीक है ओके
तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो एनर्जी इन 1 इज इक्वल टू एनर्जी इन 2। तो बताइए एनर्जी इन 1 में पोटेंशियल एनर्जी कितना है? U1 है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m v1 स्क्वायर। मास के बारे में कुछ T1 दिया है तो। मास नहीं दिया सर। ठीक है, हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 कितना है? पोटेंशियल एनर्जी है U2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। और उसने दिया हुआ है T1 दिया हुआ है ना? हाँ, Yes, इसकी sir. वैल्यू उसने T1, तो उसने दिया हुआ है कि हाफ m v1 स्क्वायर इज T1, तो v1 इज अंडर रूट 2 T1 बाय m। तो यहां से आ जाएगा आपका u प्लस T1, u1 प्लस T1 माइनस u2 इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर। तो यहां से v2 आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय m, है ना। तो आपका साइन थीटा 1 जो है वो साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, थीटा 1 बाय थीटा 2 की वैल्यू पूछिए। यस, इज इक्वल टू क्या है यहाँ से? v2 बाय v1, और v2 की वैल्यू ये है, तो और v1 की वैल्यू है, तो 2 बाय m, तो 2 बाय m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट u1 माइनस u2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सर इसमें एक बार और बता दीजिए कि सर y डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं लिया है? वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एक्स के लिए वाई को चेंज करते जाते हैं और फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो किसी एक पर्टिकुलर किसी भी रीजन में देख लीजिए, यहाँ पर u1 है, यहाँ पर u1 है, यहाँ पर u1 है, यहाँ पर u1 है, तो किसी भी पॉइंट एक्स पे वाई को चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन वही का वही रह रहा है ना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर u2 है, यहाँ पर u2, यहाँ पर u2, यहाँ पर u2, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स के लिए वाई को चेंज करेंगे तो फंक्शन जो है सेम आ रहा है, मतलब u जो है y इंडिपेंडेंट है ना। बट किसी एक पर्टिकुलर y के लिए, मतलब y इज इक्वल टू 0 के लिए x को चेंज करेंगे तो यहाँ पर u1, यहाँ पर u1, यहाँ पर u1, बट यहाँ पर u2 हो गया, तो x को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, y को चेंज कर रहे हैं तो इसमें पोटेंशियल सर चेंज एक नहीं। कंफ्यूजन है कि सर जब वो सर वॉल से टकरा रहा है तो हाँ। सर सेकेंड रीजन में जा रहा है, तो सेकेंड हाँ। रीजन में जा रहा है तो उसका पोटेंशियल कुछ और है। हाँ तो हाँ, सर तो उसके लिए तो एक्स और वाई दोनों चेंज होगा, y कहाँ से चेंज हो रहा है? क्योंकि दूसरे रीजन में चला गया। हाँ, तो दूसरे रीजन में चला गया, तो दूसरा रीजन को डिवाइड कौन कर रहा है? x कर रहा है कि y कर रहा है? रीजन को डिवाइड जो कर रहा है वो फंक्शन क्या है? u क्या आपको लिखने के लिए बोला मैथमेटिकली, तो आप बोलेगे u इज u1 व्हेन x इज लेस देन 0 और u इज u2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये लिखोगे फंक्शन आप। तो इस फंक्शन में x डिपेंडेंट हो रहा है ना। यस सर, समझ गया सर। ओके, सर जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें सर दिया है सर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो सर इसमें तो ग्रेविटेशनल नहीं, तो इसने क्या बोला है कि द रॉड इज हैंगिंग फ्रॉम द पिवट पार्टिकल कंसीडर द लीनियर मोमेंटम। अच्छा, तो कौन सा सही नहीं है? तो उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो बोथ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर कंजर्व्ड। तो बताइए यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? नहीं होना नहीं चाहिए सर, वी चेंज हो रहा है। हाँ, मोमेंटम ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि हिंज जो है फोर्स लगा देगा रॉड पे। यस, है ना। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एंगुलर मोमेंटम इज नॉट,
ये तो गलत है, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा। ओके, लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व बट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ये सही है ये सही है। है ना। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, हिंज के अबाउट, तो कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सी सर ऑप्शन सही। एंगुलर मोमेंटम सर कैसे कंजर्व? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट देखिए, ओ के अबाउट, इस तरह से आ रहा पार्टिकल है ना। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट जो है, जब पार्टिकल यहाँ से हिट करेगा, जस्ट हिट करेगा, तो जस्ट हिट करने से पहले और हिट करने के बाद में, तो जो भी फोर्सेस है सिस्टम पे एक्सटर्नल, वो टॉर्क जीरो है नेट, क्योंकि mg जो है नीचे लग रहा है यस और इस mg भी नीचे लग रहा है, तो mg का टॉर्क तो जीरो है ना। और हिंज का जो भी फोर्स लगाएगा वो तो हिंज से ही पास हो रहा है ना। तो ये जब हम रिजिड बॉडी करेंगे, रिजिड बॉडी मोशन, उसमें इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर तो यहाँ पर तो हिंज दिया हुआ है, सपोज आपको कुछ नहीं दिया होता कि रॉड रखी हुई है और फिर पार्टिकल आ रहा है, तो क्या होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम रिजिड बॉडी मोशन में करेंगे, है ना। सर इसको ना एक स्ट्रिंग से अटैच करके इसका सेंटर ऑफ मास का, कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कंसीडर करके वैसे करके देखा था सर। हाँ, तो उससे भी तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि हाँ उसमें सेम कुछ आएगा गलत तो नहीं होगा ना सर, क्योंकि स्ट्रिंग हमने मासलेस ले लिया और नीचे लटका दिया कॉमन सेंटर ऑफ मास पे। यस यस मास यस, को। यू कैन डू इट, या। ओके सर। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन और उसके बाद में फिर कल करेंगे। सर 7 नंबर बता दीजिए सर, हाँ हाँ, थोड़ा 1 मिनट, उससे पहले एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है किसी का? यस सर 4 बता दीजिए। तब मैं भेज दूंगा सर, बना रखा है। सर 4 बताइए ना। क्या हुआ? बता 4 में दीजिए कुछ सर। दिक्कत? 4, a high velocity missile traveling in horizontal line with kinetic energy of 3 gigajoules explodes in flight and breaks into 2 pieces of equal masses. Okay, ठीक है। one of the pieces, तो इनिशियली जो है एक मिसाइल है ना, वो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दिया हुआ है 3 गीगाजूल, और एक्सप्लोड करता है 2 पीसेस ऑफ ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस। तो इसका मास सपोज इनिशियली m है, और one of the pieces flies off in a straight line perpendicular to the original direction in which missile was moving. तो मिसाइल इस डायरेक्शन में है, तो एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है, ए जो है, ए वाला पीस जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन इन विच द मिसाइल वाज मूविंग। तो ए वाला जो है, इसका पार्ट, जो पार्ट ए है उसका मास m/2 है, वो जाता है इधर, और काइनेटिक एनर्जी है 2 गीगाजूल, है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितने है, 2 गीगाजूल। If gravity can be neglected for such high velocity projectiles, it follows that other piece B flew in a direction at an angle with the horizontal direction of. Okay. तो B जो है वो B की वेलोसिटी किधर होगी, है ना, पूछा ही है ना। तो VB किधर होगी? Okay. Suppose this is X direction and this is Y direction. Okay. तो काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है 3 गीगाजूल। तो बताइए मुझे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होता है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इधर v से जा रहा है सपोज, v इनिशियल। तो आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 3 इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी इनिशियल स्क्वायर। तो v इनिशियल आपका आ जाएगा अंडर रूट
6 गीगाजूल बाय एम। वी इनिशियल आपका 6 गीगाजूल बाय एम, और ए की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 गीगाजूल है ना? तो आपका V2 जो है VA हो जाएगा, VA से जा रहा है ये ना? तो हाफ एम इंटू VA स्क्वायर, ये दिया हुआ है 2 गीगाजूल, 2 गीगाजूल। तो यहाँ से आपका VA हो जाएगा आपका हाफ इंटू m/2 होगा यहाँ पे, क्योंकि मास ए का हाफ है ना। तो VA आपका कितना हो जाएगा? VA आपका हो जाएगा, VA स्क्वायर इज 2 इंटू 2 8 गीगाजूल बाय एम। तो VA आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 गीगाजूल बाय एम। तो VB वेक्टर निकालना है हमें। तो हाफ इंटू m/2 VA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गीगाजूल। ठीक है, ओके। अब बताइए, एक्सप्लोजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा हाँ सर। ना? तो मुझे बताइए, तो VA इतना है, VA कितना है? इतना, और डायरेक्शन क्या है इसकी? VA की जे कैप है, ओके। और V इनिशियल कितना है? 6 ये और I कैप है। तो मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करूं, तो बताइए इनिशियली कितना मोमेंटम है? m इंटू VI है ना? इनिशियली मास m है और VA से जा रहा है। फाइनली कितना मोमेंटम है x डायरेक्शन में? A पार्टिकल तो y में जा रहा है, तो A का तो x में कोई मोमेंटम नहीं होगा, है ना? हाँ सर, नहीं। किसका होगा? y का होगा। तो y में VBX इधर है और VBY इधर है। तो y का क्या होगा? सबसे पहले y का मतलब B का मास कितना है? m/2 है ना? यस सर। तो m/2 इंटू VBX, है ना? तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो VBX आपका कितना आ जाएगा? 2 इंटू VI, मतलब 2 इंटू VI कितना है? अंडर रूट 6 गीगाजूल बाय m। तो VBX आपका इतना आ गया, है ना? अब y डायरेक्शन की बात कर लेते हैं एक बार। तो y डायरेक्शन में बताइए, इनिशियली y में कोई मोमेंटम है क्या? नहीं। जो भी है x में। अब बताइए फाइनली y में a का कितना है? कितना है y में a का? VA सर। m/2 इंटू VA, और इसका कितना है? m/2 माइनस नेगेटिव में है, माइनस m/2 इंटू VBY, है ना? B का नेगेटिव में है, तो यहां से VBY कितना आ जाएगा बताइए? V आ जाएगा, यस सर। और VA की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 8 गीगाजूल बाय m। ठीक है, तो आपका इधर VBX दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 अंडर रूट 6, और ये दिया हुआ है अंडर रूट 8, मतलब 2 अंडर रूट 6 मतलब अंडर रूट कितना है? 24, है ना? तो आपसे क्या पूछा है कि एंगल पूछा है ना? हाँ, तो ये एंगल पूछा कितना है? थीटा पूछा है ना? तो ये डिस्टेंस आपकी है 2√6 और ये डिस्टेंस है √8, है ना? तो tan थीटा कितना हो जाएगा? हाइट डिवाइडेड बेस, तो हाइट है √8 और बेस कितना है? √24। तो आपका कितना आ जाएगा? tan थीटा
1/3√3। तो थीटा आपका आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन किया सिर्फ हमने दोनों डायरेक्शंस में। ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट देखेंगे अगला वाला, और कुछ थियरी भी करेंगे। सर 5 का एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा क्या, बस थ्योरेटिकल हाँ, इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, तो अगली क्लास हमारी में भी अभी अगली क्लास कब है हमारी? 7 o'clock। शाम को 7 हाँ सर यस सर ये जो जो आप बताए थे ना सर पीछे में MSQ वाला, कौन सा वाला? सर MSQ का जो आप सर फर्स्ट जो 6.1 से बताए थे ना, हाँ हाँ तो सर उसमें सर थोड़ा सा डाउट है सर। हाँ हाँ बताइए। सर जैसे कि ये मतलब हमने जो U का जो मिनिमम जो वैल्यू निकाला है, मतलब हाँ मिनिमम वैल्यू जो हमने निकाला है, तो सर मतलब जैसे कि वो जो कंडीशन दिया हुआ है कि U स्क्वायर शुड बी लेस देन 3GL, हाँ 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 तो सर उसके लिए सर जो आपने लिया था ना, वो सर हाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो और किसी का कोई डाउट? 5 वाला एक बार फिर। 6.1 से एक डाउट है सर, क्वेश्चन मैंने कर लिया है लेकिन सर थोड़ा कंफर्म करना है। ठीक है, ओके ओके, तो ओके, तो जिनके डाउट हैं वो रुक सकते हैं, और बाकी फिर हमारी अगली क्लास 7 बजे होगी। तो आज की क्लास में हम थोड़ा थ्योरी पार्ट करेंगे ना, असाइनमेंट डिस्कशन कल करेंगे ये परसों, ठीक है। ओके थ्योरी आगे बढ़ाएंगे, असाइनमेंट ही डिस्कस करते रहेंगे फिर। ओके, तो इन द नाइट क्लास 7 to 9 जो है हमारी इवनिंग क्लास, उसमें हम थ्योरी पार्ट करेंगे और फिर आगे डिस्कशन असाइनमेंट करेंगे। ओके, तो अब एक एक करके आपके जो है बाकी क्लासेस खत्म हो गई अभी यहाँ पे। जिनके कॉलेज वॉलेज के जाना है वो जा सकते हैं। हाँ, तो बाकी क्या पूछ रहे थे आप? MSQ वाला सर। हाँ ये वाला, हाँ बताइए इसमें। सर वो वाला जो सर हमने U मिनिमम √3GL लिया है ना सर, वो हाँ। मतलब नहीं, यू मिनिमम का मतलब यहाँ पे है कि इतना रिक्वायर्ड है ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर सके, ये यू मिनिमम का मतलब ये है। हाँ, तो सर जैसे कि वहाँ पे जो आपने स्लैक्ट वाला जो कंडीशन लेकर बताया था ना, कि मतलब इससे जो कंडीशन दिया हुआ है कि हाँ। ये मतलब इससे जब कम रहेगा तो वो स्लैक्ट हो जाएगा, तो सर हाँ। वो वाला एक बार फिर से सर बता दीजिएगा ना कैसे। हाँ, तो मैंने बताया ना कि ये जो है मिनिमम है ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर जाए, अगर इससे कम होगा तो सिलेक्ट कर जाएगा, ये बोल रहा हूं मैं। क्योंकि ये कंडीशन हमने कैसे निकाला था आपको पता है? ये वी मिन कैसे निकाला था √GL, कि ऊपर टेंशन को जस्ट 0 किया था, सबसे ऊपर टेंशन 0 होगा। हाँ यस सर, है ना। तो अगर यहाँ पर वी मिन √GL है तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें फिर नीचे से 5GL से फेंकना पड़ेगा। हाँ यस सर, और यहाँ पर 3GL से फेंकना पड़ेगा। तो ये है कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन विदाउट स्ट्रिंग बीइंग स्लैक्ड। अगर इससे कम है तो हाइट पे पहुंचने से पहले ही उसका टेंशन 0 हो जाएगा। समझ रहे बात? वो सर्कुलर मोशन नहीं है। यस सर। ओके ओके, और क्या डाउट पूछे थे आप? कोई पूछ रहा था कि 6.1 में एक डाउट है। क्वेश्चन नंबर 13 13 हाँ 13 में क्या डाउट है आपका? क्वेश्चन मैंने कर लिया है लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है। 2 point objects A and B of mass 1000 kg वाला। हाँ, they are initially at rest at separation equal to 1 meter. Their mutual gravitational attraction draws them together. How far from A's original position will they collide? Okay. तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? सॉल्व तो मैंने कर लिया है लेकिन सर ये अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का। हाँ, तो अप्रोच ये है ना कि इनिशियली सपोज मास A है और ये मास B है।
ये 1000 kg है और ये 3000 kg। ठीक है, हाँ। तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अगर ये सपोज मैं इसको ओरिजिन लेता हूं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इसका? बताइए। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? XCOM क्या होगा? MA XA प्लस MB XB बाय MA प्लस MB। तो X सेंटर ऑफ मास जो आपका होगा, MA कितना है? 1000, लेकिन उसका XA 0 है। MB कितना है? 3000 इंटू उसका XB कितना है? 1 मीटर पे है, 1 डिवाइडेड बाय MA कितना है? 1000 प्लस MB कितना है? 3000। तो सेंटर ऑफ मास आपका होगा 3/4 पे। 3/4 पे सेंटर ऑफ मास होगा। यस सर। अब बताइए सिस्टम जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन से पास में आ रहे हैं, इसका मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। यस सर। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। यस सर। तो ये पार्टिकल थोड़ा आगे आएगा और ये पार्टिकल इस तरह से आगे आएगा ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं का रहे। तो बाद में जब कोलाइड करेंगे तब दोनों यहीं पे कोलाइड करेंगे। यस सर। यस तो सर। कोलाइड यहीं पे करेंगे। तो कोलाइड जब यहाँ पे करेंगे तो ए से कितनी डिस्टेंस पे कोलाइड करेंगे? 3/4 डिस्टेंस। 3/4 पे करेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 अभी हम 7 o'clock को मिलते हैं फिर। ठीक है, इवनिंग में। यस, 16 क्वेश्चन। क्या हुआ? सर 25 25 में हाँ 25 हमने कर लिया है। तो सर हमने इसको ऐसे किया जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करता, क्योंकि सर जो ए स्लाइड कर रहा है तो हाँ जो एल साइन थीटा है सर, ये तो बी के रिस्पेक्ट में है ना वो डिस्टेंस उसका। हाँ हाँ सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो उतना नहीं ले सकते हैं। हाँ हाँ तो सर मैंने इसी के रिस्पेक्ट में किया तो आंसर आ रहा था √G/3। नहीं, आपने क्या किया था बताइए फिर से एक बार। सर पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाया बस ए पे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लेकर। हाँ तो सर उसे बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मेरा आ रहा था √GL। नहीं, आप जो है मतलब बी को मूव नहीं करा रहे क्या? बी भी तो मूव करेगा। हाँ सर, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा सकते हैं ना इस पर, इसका लेकर बी के रिस्पेक्ट में, जैसे बी के रिस्पेक्ट में। बट आपने बी का वेलोसिटी नहीं लिया कि नहीं वहाँ पे? बी नहीं स्क्वायर लिया कि? सर बी के रिस्पेक्ट में तो बी के वेलोसिटी नहीं है, कंसीडर करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी में आप रिलेटिवली नहीं लगा सकते कि काइनेटिक एनर्जी में वी स्क्वायर होता है ना। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी में आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों सर? मतलब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जो है वी स्क्वायर होता है ना टर्म, तो वी स्क्वायर में रिलेटिव थोड़ी होगा। वहां पर देखिए किसी भी आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट वहां पे लगा सकते हैं जहां पर क्या हो कि लीनियर टर्म्स हो वी के, तो वी या फिर वी ए माइनस वी बी या V1 V2 कुछ इस तरीके से। वी स्क्वायर होता है तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी स्क्वायर। तो उसमें क्या आएगा? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाते हैं ना वहाँ पे। जैसे सर हम 2m बी ब्लॉक पर बी ब्लॉक से कंसीडर करेंगे तो सर बी ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहेगा। नहीं, बी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा लेकिन उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना। हाँ सर, लेकिन उसी पर बैठ कर जैसे कंसीडर करेंगे ब्लॉक ए के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तब। हाँ तब सर उसकी ब्लॉक ए की वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी आएगी ना, तो उस पर से सर हम लोग लगा सकते हैं। हाँ, तो फिर नहीं ठीक है, मैं एक बार देखूंगा आप क्या बोल रहे हैं। मैं एक बार समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार मैं ट्राई करूंगा जो बोल रहे हैं आप। और उसके बाद में फिर क्या किया आपने? तो सर फिर उसके बाद वेलोसिटी मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। हाँ, तो सर उस पर फार्मूला में अप्लाई किया तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू √GL है। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू √GL प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, इसको सर उसके इक्वेशन में पुट किया तो √GL बाई माइनस √GL/3 आंसर आ रहा है।
अच्छा, तो एक बार आप मैं आपका विकास नाम है ना? यस सर। हाँ विकास, आप एक बार टेलीग्राम में भेजेंगे, मैं एक बार आपका सॉल्यूशन देखता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नंबर 17 16 को पे देख थोड़ा लीजिए। सा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या डाउट है? सब स्लाइड का बैक करना पड़ेगा। 16? यस सर। 16 अभी मैंने नहीं कराया। 16 मतलब कौन सा, वो रिंग वाला? यस सर, जो रिंग वाला? सर्कुलर पाथ में बॉल जो मूव कर रहा था। हाँ हाँ, तो वो अभी आज मैंने थोड़ी कराया वो। आज हुआ है सर। आज सर्कुलर वाला कौन सा कराया मैंने? क्वेश्चन नंबर 6। नहीं 16 नहीं कराया मैंने आज। नंबर 15 था वो। 15 तो हॉरिजॉन्टल बंधा हुआ था उसमें था। आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? आप उसके इनिशियल्स बोलिए क्वेश्चन के। वो क्वेश्चन था सर, जैसे कि एक सर्कुलर मतलब सर्कल बनाया हुआ है, उस पे एक छोटा सा बॉल ऊपर में है। हाँ तो वो थोड़ी और किया आज हमने, जो 4M और M वाले बात कर इसमें रहे हैं आप। 4M और M वाला बोल रहे हैं आप? इसमें ऐसे यस सर, उसमें R2 R3 R4 ऑप्शन दिया गया है। हाँ 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 और सर वो के अंदर में कैविटी टाइप का हाँ हाँ। बना हुआ है। नहीं तो वो वाला क्वेश्चन अभी बॉल आज जो हमने है। थोड़ी डिस्कस किया, वो तो हम पहले कर चुके थे एक बार। यस सर, बताए थे आप। हाँ एक बार कर चुके थे डिस्कस ये। मतलब डाउट क्वेश्चन नंबर 17 में है डाउट सर। ये जैसे आपने कराया था सर वैसे तो आ जा रहा है सर। एक अगर हम ऐसे करें कि जो ऊपर छोटा वाला ब्लॉक है इसका टाइम निकाल लें नीचे आने तक, और हाँ। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालें नीचे वाले ब्लॉक की। तो टाइम कैसे निकालेंगे आप? सर इसमें ग्रेविटी लग सर उस हिसाब से निकाल लेंगे। ग्रेविटी लग रही है इसमें, इसका वाई कंपोनेंट लेंगे। हाँ नहीं, टाइम ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? वाई कंपोनेंट ले लेंगे। तो ग्रेविटी तो नीचे ही है, तो ग्रेविटी का वाई कंपोनेंट मतलब कैसे? ग्रेविटी का नहीं हाँ मोशन का। सर, मोशन का। हाँ तो नहीं, तो साथ में नॉर्मल भी तो लग रहा है ना फोर्स, आप ये देखिए। और नॉर्मल नॉर्मल के बारे में हमें कुछ पता नहीं अभी। नॉर्मल का भी तो वाई कंपोनेंट होगा कुछ, यस सर यस। है ना? तो वाई डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स वेरी केवल, करता रहेगा ना इसमें। हाँ वेरी करता रहेगा, और वाई डायरेक्शन में केवल ग्रेविटी नहीं होगा, नॉर्मल भी होगा। ओके सर। ठीक है, ओके ओके। तो अभी 7 o'clock को मिलते हैं, और आज की क्लास में हम थियरी पार्ट करेंगे, और बाकी जो है आपके असाइनमेंट्स हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।